بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرت صدر محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب قائم مقام ناظم امارت شرعیہ، اور مدھوبنی میڈیکل کالج کے بانی و ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب، کٹیہار میڈیکل کالج اور الکریم یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب، مولانا ڈاکٹر پروفیسر شکیل احمد قاسمی صاحب، دیگر اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پروگرام اخیر مرحلے میں ہے، وقت موعود سے ہم لوگ آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے کوئی لمبی بات نہیں کہنی ہے۔ ہم اور آپ سب مل کر حضرت امیر شریعت اپنے مخدوم مکرم کا خطاب سنیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ تاہم تعمیل حکم میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا۔ تعلیمی پسماندگی یا مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ اگر تلاشیں، اس کے اسباب، حقائق اور تدارک پر اگر آپ غور کریں، ظاہر ہے کہ یہ اسباب ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، بات بڑی اچھی لگی، اس کا حل کیا؟ حل پھر وہی ہے کہ ہم نے تعلیم کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ کھانا اور پینا جس طرح زندگی میں ضروری ہے کہ اگر آدمی نہ کھائے نہ پیے تو ظاہر ہے 2 روز 4 روز ہفتے روز کے بعد وہ مر جائے گا، لیکن علم کے بغیر ایک سانس بھی جو شخص زندہ ہے گویا وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ علم کی ہر سانس میں ضرورت ہے، ہر لمحے ضرورت ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو محسوس کیا؟ کھانے کے لیے تو بڑا اسٹینڈرڈ نظام ہے، معمولی سے مرحلے کے لیے 40 سے 50 ہزار روپے ایک دعوت میں خرچ کر دینا عام مزاج ہے۔ ایک شادی میں 25 سے 30 لاکھ روپے کا خرچ کر دینا متوسط طبقے کے کاشتکاروں اور کسانوں کا مزاج بن چکا ہے، اور اگر مناسب گھرانے کی بات کیجئے تو 2 کروڑ 3 کروڑ روپے خرچ ہونا عام بات ہو گئی۔ آپ نے محسوس کیا کہ کہیں ایک شادی میں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک بہت بڑا معیاری انداز کا اسکول قائم کر سکتے ہیں جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں ہماری نئی نسلیں تیار ہو کر نسلوں کو بناتی رہیں گی اور پورے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک ایسا اصلاحی کردار اور ایک ایسا انقلاب پیدا کرے گی کہ آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، آپ نے اسے نہیں سوچا ہوگا۔ ہم اور آپ پیسے آتے ہیں تو زمین اور جائیداد میں، کھیت اور کھلیان میں، بلڈنگوں میں، فلیٹوں میں، کارخانوں میں اور دیگر چیزوں میں اسے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اسکول بھی در حقیقت جہاں تعلیم کا ذریعہ ہے، یہ خود ترقی کا بھی اور معاشی مضبوطی اور معاشی استحکام کا بھی ذریعہ۔ آپ نے اپنے کاروبار کا ذہن اسی کو کیوں نہیں بنا لیا؟ اپنا رخ کیوں نہیں بدل لیا؟ آپ نے نہیں بدلا۔ اسٹیج سے تقریریں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن بات وہیں پر آ کر پھر رک جاتی ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے مزاج کو، اپنے فکر کو نہیں بدلا۔ ہم سبوں کے مرشد مخدوم گرامی حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بہار نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں تعلیم کا مشن لے کر کھڑے ہوئے، اور جس مشعل کو، جس وقار، معیار، دانشمندی اور پوری بصیرت کے ساتھ عام کرنے کا جو کام کیا ہے، اس پورے ملک میں گزشتہ 3 دہائیوں میں کوئی ایسا نام نہیں ملتا جنہوں نے اس معیار کے ساتھ کام کیا اور اس پورے ملک کو
इब्तिदाई से लेकर आला तालीम तक के सोचने के लिए जो राहें हमवार की, वो रहमानी 30 के बानी हैं। रहमानी 30 को आप क्या समझते हैं? ये इस मुल्क का एक अजीम वो कारनामा है जिसे तजदीदी कारनामा कर कह सकते हैं। एक आलिम के दिमाग ने, एक मुफक्किर के दिमाग ने, एक ऐसे इंसान के दिमाग ने उसे पैदा किया कि दिमाग नहीं अक्लें दुनिया की हैरान है कि आखिर इस इंसान के दिल और दिमाग में ये खाका कैसे पैदा हुआ। उसने पूरे मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े तालीम याफ्ता, बड़े बड़े माहिरे ने तालीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उसमें क्या तरीक़ेकार है जिसकी बुनियाद पर ऐसी मकबूलियत और ऐसी 100% कामयाबी की शक्लें तलाश की गई। लेकिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि एक रहमानी 30 से काम नहीं चलेगा, इसके निज़ाम को फैलाना बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हैरत होगी, मुझे कहना नहीं चाहिए कि आज रहमानी 30 को भी जो असबाब वसाइल चाहिए हमारी कौम उसे देने के लिए तैयार नहीं है। जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब बर्पा किया, जिसने पूरी दुनिया के मुफक्किरों को, अमेरिका और यूरोप के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, आज इस मुल्क ने और इस मुल्क की आवाम को उसको भी देने के लिए बहुत सारा सामान नहीं है। यह है तालीमी पसमानदगी के असबाब। आप ये नारा तो लगा लेते हैं कि पेट में पत्थर बांध लेंगे, नहीं खाएंगे पढ़ाएंगे, ये नारे ही नारे हैं, लेकिन यहाँ अरबों करोड़ों रुपए हम इधर उधर लगा देते हैं तालीम के नाम पर, कुछ नहीं। आज के इस सेमिनार में, आज के इस प्रोग्राम में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ 20वीं ब्लॉक के तमामी जिम्मेदारान को और इजलास के मुनक़िद करने वाले तमामी हजरात को, खासतौर पर हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी साहब को कि उन्होंने इस तरफ मुतवज्जे किया और ये कोशिश किया कि इलाके की पसमानदगी और ख़ासतौर पर तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए हमें बैठना होगा, लायामल बनाना होगा, सोचना पड़ेगा, जब जाकर ये निज़ाम बनेगा। एक बात मैं अर्ज़ करूँ, जिस सरजमीन पर आप जमा हैं, ये 1980 में इस जगह पर यह स्कूल कायम करने का प्रोग्राम बना। 1989 में यह निज़ाम शुरू हुआ और इस एकेडमी ने जिस अंदाज पर इस पूरे इलाके और पूरी आबादी में तालीमी मेयार को बुलंद, मुस्तहकम और तालीम को आम करने में किरदार अदा किया है, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। अगर आज डॉक्टर फैयाज साहब ने मधुबनी मेडिकल कॉलेज की शक्ल में यहाँ की आवाम को जो बड़ा सरमाया और जो बड़ी कीमती एक चीज अता की है, आप इसकी आपको कदर करनी चाहिए। लेकिन जाहिर है माहिरीन तालीम की कदर नहीं, उसका निज़ाम मेयार जो होना चाहिए वो हौसले नहीं। इसलिए मैं सिर्फ इस तमहीद के बाद जो मुझे एक पैगाम सिर्फ देना है वो ये है कि आज आप हजरात ये अज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि इमारत शरिया सिर्फ काम नहीं करेगी, जमीयत उलमा शरीफ काम नहीं करेगी, हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुल आलिया अगर तन्हा सिर्फ काम करेंगे इससे काम नहीं हो पाएगा। आप सब की जिम्मेदारी है, आप सब मसऊल हैं, खड़े हों और उस मिशन को लेकर खड़े हों जिसको हजरत अमीर शरीयत साहब हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हम सब के मुर्शिद, हम सब के मखदूम और हम सब की आन बान और शान थे, उन्होंने जिस मिशन को हमारे हाथों में दिया, उनके साहिबजादे गिरामी कद्र और उनके सच्चे और मुखलिस जानशीन जिन्होंने अपनी अलालत के बावजूद दिन और रात, सुबह और शाम पूरी जांफशानी के साथ तालीम को इस मुल्क में और खास तौर पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड में आम करने का जो एक इरादा नहीं बल्कि आज़्म मुसम्मम किया और जिसके लिए खड़े हैं। और अभी कई स्कूल कायम हो चुके और मुसलसल कई स्कूलों का प्रोग्राम अभी आगे है, यहाँ से लेकर उड़ीसा और कटक और राउरकेला, रांची तक। जाहिर है इन तीनों सूबों में इसमें जरूरत इस बात की है कि हम और आप सब हज़रत मेरी शरीयत के साथ शाना बशाना उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों, एक आवाज पर लब्बैक व सादैक कहने के लिए तैयार हों कि हम और आप हजरत मेरी शरीयत को यह एतमाद दिलाइए कि हजरत आप खड़े हों, आपके कदमों से कदमों में मिलाकर आपकी इत्तिबा और नक्श कदम पर चलकर जिस समौतात का इजहार हमने किया है, एक बार फिर मधुबनी की सरजमीन से वह इस्तकबाल हम आपका करते हैं और आपका इस्तकबाल कामों का इस्तकबाल है।
है, इसलिए हम कामों के लिए आपके साथ मुस्तकिल 100% पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं कि आप जहां आवाज देंगे और तालीम के जिस मिशन को खड़ा करने के लिए हम हुक्म जारी करेंगे, उस हुक्म को लेकर हम ये नहीं देखेंगे कि हमें अपने लिए कुछ करना है, बल्कि हमें उसके लिए करना है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे, अबू बकर अपना सारा माल पेश कर देते थे, उमर अपना निस्फ माल पेश कर दिया करते थे, तो क्या हम अपना 40वां हिस्सा भी नहीं पेश कर सकते? क्या हम उसको अपने घर से कुछ नहीं लगा सकते? अगर हम सब ने इरादा कर लिया और ये सोच लिया कि सरकार की सुन्नत और उसका उसवा है कि पहले वो मस्जिद नबवी तामीर करते हैं, तालीम के लिए दार अरकम और सुफ़े नबवी तामीर करते हैं, उस सुफ़े के बाद फिर वो अपना घर तामीर करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये तो नहीं हो सका कि हम अपने घरों से पहले अपने मसाजिद, मदारिस, मकातिब और स्कूलों का निज़ाम कायम करें, लेकिन ये तो हो सकता है कि अब घर की दूसरी तीसरी मंजिलें नहीं बनेंगी, अब कारखाने पर कारखाने नहीं लगेंगे, अब लगेगा तो स्कूल पर स्कूल, कॉलेज पर कॉलेज, मदारिस पर मदारिस, मकातिब पर मकातिब। हम तालीम के को लेकर आम होंगे, इसको आम करने के लिए खड़े होंगे, इसलिए कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम का मेयार दर हकीकत तालीम है, जिस कौम ने इस दुनिया को तालीम से रोशनास कराया है, उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिस इस्लाम ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहली वही तालीम के साथ किया, उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने ऐलान किया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, उन्होंने कहा मैं कायनात में मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, उस्ताद बनाकर भेजा गया, पढ़ाने वाला बनाकर भेजा गया हूं। ऐ लोगों, तालीम को आम करने के लिए ये समझ लो कि यही अल्लाह का निजाम है, यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है, यही इस कौम का मिजाज है, यही शरीयत का मिजाज है। इसलिए अगर उस अल्लाह के मानने वाले, उस रसूलुल्लाह से की इत्तिबा करने वाले और उस किताब सुन्नत की पैरवी करने वाले, उस कौम के मिजाज शनास और उस कौम के आप एक मुखलिस फर्द हैं, तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो क्या हम सब खड़े होंगे हजरत अमीर शरीयत की आवाज पर इंशाअल्लाह? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। लेकिन ये नारा नारे तकबीर ही न रहे, बल्कि वह नारे मस्ताना और नारे दीवाना बन जाए कि जिस दीवानगी में हमको कुछ करना है और कर्म के दम लेना है। याद रखिए, काम जुनून और दीवानगी से हुआ करता है। जब तक आप में जुनून और दीवानगी नहीं होगी, काम नहीं होगा। याद कीजिए कुतुब आलम हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह बैलगाड़ियों पर बैठकर कैसे गांव-गांव का दौरा किया। याद कीजिए उस जमाने को तो आपने खूब देखा जब हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह कैसे कैसे दौरे किए। ये इदारे जो आज कायम है, ये मकातिब का निज़ाम जो चल रहा है, ये तालीम जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं बुजुर्गों की देन है, उसी का तोहफा है। इसलिए आज उसी पर लगकर हमें ये देखना। लेकिन एक बात और अर्ज करूं, अफसोस की जरूरत नहीं, या बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं, या ये कह लीजिए कि मायूस होने की जरूरत नहीं, या पस्ता दिल और मगमूम दिल लेकर जाने की जरूरत नहीं कि हम लोग तो तालीम में बड़े पसमानदा नहीं। पसमानदगी कही जा रही कि आप पीछे हुए, आगे बढ़ना मगर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आधे रास्ते पर आप जा चुके हैं। आज का सर्वे अगर उठाइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को छोड़िए और रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को छोड़िए, आप अगर फौरी ताजा सर्वे कराएंगे, कल अगर 10% तालीम रही होगी 20वीं मार्च से 10 साल 20 साल पहले, तो आज कम से कम 40% तालीम की शरह होगी। बहुत तेजी के साथ तालीम बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ। ये अल्लाह का करम है, हर घर में लड़कों और लड़कियों की तालीम का एक मिजाज बन गया। लेकिन ड्रॉप आउट की शक्लों ने मेयार तालीम को, शरह तालीम और खासतौर आला तालीम को जो कम किया, ये गमनाक है। इसलिए आप हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुल आलिया के तजर्बात से, हमारे शरिया के इस मिशन से फ़ायदा उठाइए और अज़्म कीजिए और पुख्ता इरादा कीजिए कि हम और आप सब मिलकर तालीमी इदारे कायम करेंगे। तालीमी इदारे के लिए हजरत से मिलकर, हजरत के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो इदारे कायम हैं उसे मुस्तहकम करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ फरमाएं हक़ तआला शानुहु हम सबको नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमाए और दीन और मिल्लत, इल्म और अमल की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ी बेशकीमती